today. Okay, so हम कर रहे थे psychiatric formulation और last time मैंने एक केस दिया था जो मैंने कहा था कि आप लोग अगर देख लें तो उसी केस से हम दोबारा स्टार्ट करके पिकअप कर लेते हैं. Nasra was fired from her job 1 month ago because she started making numerous mistakes and had trouble concentrating. About 3 months ago, she started feeling down after a breakup of her engagement with a man she had been engaged since early childhood. She has trouble falling asleep and has noticed a significant decline in her appetite. She feels like a failure and believes that no one will want her again. Uh, she has thoughts of committing suicide but admits I could not never do it. The only thing that seems to help is when she recites Quran. She explains during that time I'm more like my old self and at least that night I can sleep. She also reports that her mood improves when she visits her friends. However, she reports such low energy throughout the day that she is unable to schedule her job. She had a similar episodes about 2 years ago after she was laid off from her former job. She reports that it looks 4 months before she began feeling normal again and positive about herself. Her history indicates that her mother had severe depression and was hospitalized. On several occasions when Nasra was young, she described her as negative and often absent in her youth. However, Nasra always did well in school and had an active social life. Her work history has been very consistent up to her layoff. So, we were talking about the DSM 5 measures and level 1 positive for depression, general disability score, subscale of life activities and participation in society, differential diagnosis, what are the possibilities, diagnostic impression, MDD, other problems related to employment. Case formulation. So, why is she so depressed? Predisposing, precipitating, perpetuating, or protective factors. How does the diagnosis and case formulation inform your treatment plan? Now, this is the important component. So, जब आप formulation लिखना शुरू करते हैं, to state the problem or the diagnostic impression. So, Nasra is suffering from major depressive disorder. State the precipitant. It was precipitated when she was laid off from the job. Critical predisposing factors. Predisposing factors may family history, personal history, other stems. Include a statement about perpetuating or maintaining factors and highlight protective and positive qualities. अब अगर हम इन सारों को देखें तो हम इस तरह बोलेंगे कि Nasra presents with major depressive disorder which appears to be precipitated by, again, laid out from the job. Factors that seem to have predisposed her to depression include, जो भी इसमें इस formulation में factors आए, the current problem is maintained by, however, the protective and positive factors include. The closeness to the religion is a protective factor. So from formulation to the treatment, how does the formulation inform the treatment plan? So हमें नासरा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करते हुए हम उसके हिसाब से चलेंगे. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर दिस डिसऑर्डर. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में मूड स्लिप प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन क्या कहती है, अदर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, उनके बारे में सारी बातचीत. आई एम सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की. ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर. Okay, so and then, okay, sorry. So and then, which types of intervention will address the predisposing, precipitating and perpetuating factors? ये बहुत important है जो हम 99.9% अपने day-to-day clinical work में miss करते हैं. आई थिंक अगली स्लाइड में ये मेंशन है, बट इफ नहीं मेंशन तो मैं इसको दोबारा रिकवर कर लूँगा. हाउ डू यू इंश्योर दैट डाइवर्सिटी फैक्टर्स आर कंसिडर्ड? हाउ डू यू टेलर ट्रीटमेंट्स सो दैट दे आर मोर स्ट्रेंथ बेस्ड? दिस इज द की टू आवर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी. सो केस फॉर्मुलेशन इज अ स्किल एंड हैज बीन टाइड टू बेटर आउटकम. इस सारी एक्सरसाइज का एक ही मकसद होता है, मरीज को ठीक करना.
जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो मुख्तलिफ सकाइट्रिस्ट मुख्तलिफ जगहों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और मैं अपने ट्रेनीज़ की प्रैक्टिस को जब देखता हूँ तो मैं उनसे बार बार एक चीज़ मेंशन करने की कोशिश करता हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन को मरीज़ के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर रखें। एक चीज़ जो बार बार मैं बताता हूँ और अभी भी आप लोगों को भी बताऊँगा, IMM में भी जाओगे, R2 में भी जाओगे, पेशेंट के साथ रिस्पेक्टफुली गुफ्तगू करना इज़ द की टू सक्सेस। और इस वक्त बेस्ट टाइम है टू रिहर्स इट टाइम एंड अगेन। अक्सर ये होता है कि साइकियाट्रिस्ट पेशेंट के साथ अच्छी रैपो बनाने के चक्कर में आओ आओ जी अम्मा जी की हाल है, दिस इज अ डेथ, राइट? अम्मा जी। नाउ इफ द लेडी इज इवन 70 एंड आई एम 50 प्लस, और अगर मैं उसको अम्मा जी कहूँगा तो उसको डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। ए बाबा जी मैनू अम्मा कह रहे हैं। सो वो शायद अपेरेंटली कोई भी शख्स इसका इजहार ना करे, बट आई रिमेंबर एक इंसिडेंस, अक्सर मेरी वाइफ जब मेरे साथ बैठी होती है तो वो एक पेशेंट आया और उसने मुझे कहा कि जी अंकल, तो मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसने अपनी उम्र देखी, तुम्हारे से भी बड़ी उम्र का, और तुम्हें अंकल कह रहा है। सो दिस इज व्हाट इज क्रूशल फॉर अस। रिलेशनशिप एसोसिएट करना मरीज के साथ, बेजा अल्फाज में उसके साथ रैपो बिल्डअप करने के लिए फ्रैंक गुफ्तगू करना is not at all recommended anywhere. You are a professional, so you have to maintain that integrity. You have to make sure कि आप जब किसी को भी बुलाते हैं तो पहली बात आप कहकर बुलाते हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो। अगर बच्चा भी सामने बैठा है और आप उसको कहेंगे अच्छा तुम बताओ मुझे तुम क्या करते हो, नो, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ टॉकिंग टू अ चाइल्ड। सो यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल। आप मुझे ये बताइए आप क्या करते हैं। सो एक रैपो बिल्डिंग, एम्पथी, एक रिलेशनशिप मैच्योर रखना जरूरी है। So this was basically the formulation that we discussed earlier. Now the psychodynamic formulation starts with the defenses. अभी जो psychology की बात हो रही थी, mature defenses, suppression, sublimation, reaction formation, borderline defenses, splitting, projective, identification, idealization, devaluation and projection. आप में से कितने लोग हैं जो इन सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? मैं चैट बॉक्स ऑन कर दूं? सर मैं ओके, चैट बॉक्स में अगर किसी ने बताना है तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। सो आई एम श्योर मुझे इन डिफेंस मैकेनिज्म्स की डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो डिफेंस मैकेनिज्म है जो IMM का भी हिस्सा हैं, जो आपको पढ़ने हैं, जो आपको याद होने चाहिए। सो मैं उनके बीच ऊपर नहीं जाऊंगा। सो ब्रीफली टचिंग एवरीथिंग, डिनाइल, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, अनडूइंग, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, रैशनलाइजेशन एंड एक्सटर्नलाइजेशन आर majority of the defense mechanism. Psychodynamic formulation includes the differential diagnosis on axis 1, differential diagnosis on axis 2, ego function assessment, adult attachment patterns, transference predictions, counter-transference, transference resistance, therapeutic strategies and tactics, and prognostic predictions. So it is more complicated than the psychiatric formulation, because जब psychologist psychodynamic formulation present कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें आप लोग कहते हैं जी समझ नहीं आई या बोरिंग थी या कोई मसला था। So if you are familiar with these terms, then it is easier. If you are not, then it's complicated. So you have to be careful. Ainsworth attachment patterns में secure, insecure, ambivalent, disorganized, 4 किस्म के attachment pattern हैं। और adult attachment styles में secure, preoccupied, fearful, avoidant and dismissing, ये 4 included हैं। ego functioning assessment होती है object relations, affect regulation, frustration tolerance, impulse control,
जजमेंट, थिंकिंग, डिफेंसेस, जो डिफेंस मैकेनिज्म्स पहले बोले, एडेप्टिव रिग्रेशन इन द सर्विस ऑफ द ईगो, रियलिटी टेस्टिंग, सेंस ऑफ रियलिटी, स्टिमुलस barrier, synthetic integrative functions, ego autonomous and functions, hardwired. So ये वो साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हुए इसको लेकर चलना है. ट्रांसफरेंस, पॉजिटिव मैटरनल और पैटर्नल, नेगेटिव मैटरनल और पैटर्नल. अच्छा, अब ट्रांसफरेंस, anybody can give me a definition for transference? मेरे उस्ताद कहा करते थे कि transference to psychiatry is what anesthesia to surgery. ये उनके जुमले थे, क्योंकि अगर उनके ख्याल में अगर पेशेंट के साथ आपकी ट्रांसफरेंस एस्टैब्लिश नहीं होती तो आप उसको उस लेवल पे लेकर नहीं आ सकते कि वो आपकी बात माने. अगेन, इसमें बहुत सारी इफ्स एंड बट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन ऑफ कोर्स व्हेन यू आर सीइंग समबडी, आज ही मैं बैठा हुआ था क्लिनिक पे, तो वन ऑफ माय कोलीग सेड टू मी कि जी ये खातून बस आ जाए ना तो इसको बड़ा टाइम लगाती. और this is something very natural. We all are human, so we do have something जहाँ पे जब आपको पेशेंट को आप देखते हैं तो उन पेशेंट के साथ एक ऐसा रिएक्शन आता है आपको एज अ ह्यूमन कि कभी तो आप उसके बहुत ज़्यादा उसको करीब हो जाते हैं और आप कहते हैं जी कि जो भी पेशेंट कह रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, मैं उसको ध्यान से देखूं. और कभी आप बस कहते हैं जान छूटे ये सिर्फ इस मरीज से और मैं जाऊं. Now this is from our end, but from patient's end, positive or negative transference can be a problem or an issue. हमारी तरफ से जो काउंटर ट्रांसफरेंस है वो भी एक इशू है. लाइक काउंटर ट्रांसफरेंस जिसका मैं अभी इजहार कर रहा हूँ could be maternal, paternal, emerging from one's own conflicts or emerging from patient's projection. इस मरीज के बात करने का अंदाज ठीक नहीं है, ये रूड है, ये बदतमीज है, ये गुस्सा करता है, और उसकी वजह से हम काउंटर ट्रांसफरेंस ऑन इट्स ओन हमारा डेवलप हो जाता है. लेकिन अगेन एज अ प्रोफेशनल you have to be careful about these issues. So you have to make sure that you address the transference and counter transference appropriately, and if you will not do that then you cannot be a good psychiatrist. So अगर ट्रांसफरेंस मरीज को हो रही है तब भी आपको पता होना चाहिए, और अगर काउंटर ट्रांसफरेंस हो रही है तब भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको अप्रोप्रिएटली हैंडल कर लें. कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह हम किसी सेटिंग में फिर बात करेंगे. Negative transference, maternal, paternal, emerging from one's own conflicts or emerging from patient's projection. Now, these four phenomena were there with the client patients as well. And these four phenomena are with psychiatrists as well. And these four phenomena can be at both ends as well. And these four phenomena can be very much problematic or very much therapeutic. It is all dependent on how you handle it. Transference resistance. Focused on extra transferential situations and relationships in here and now. Focus on relationships and in the here and then. इस वक्त जब आपके सामने पेशेंट आके बैठा है और आप पेशेंट से गुफ्तगू कर रहे हैं, उस वक्त जो आपको ट्रांसफरेंस हो रही है, महसूस हो रही है, या काउंटर ट्रांसफरेंस हो रही है, आपको उस वक्त उसको हैंडल करना है. सो पेशेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप में हो रहा है. इसमें कुछ और थ्योरीज इन्वॉल्व हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पैराडाइम्स हैं कि हमारे मरीज के साथ रिलेशनशिप कैसे होते हैं, और वो रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें अथॉरिटी फिगर और बाकी सारी चीज़ें काउंट करती हैं. किसी वक्त अगर वो मौका मिला तो वो भी पढ़ाऊँगा. थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, सपोर्टिव साइकोथेरेपी. अब ये नाम वो हैं जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि जब आप फॉर्मुलेशन बताएंगे तो आप उसमें ये मेंशन करेंगे. ठीक है.
supportive psychotherapy, expressive insight oriented psychotherapy, interpersonal psychotherapy, cognitive behavior therapy, dialectical behavior therapy, pharmacotherapy, psychoeducation, patient and family centered. ये वो अल्फाज हैं जो हमें ऑफ एंड ऑन यूज करने हैं, ताकि और इनके बारे में हमें पता भी होना चाहिए, ताकि जब आप एग्जाम सिचुएशन में जाते हैं या इवन आप डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपको ये पता हो कि ये क्या चीज़ें कैसी बन रही हैं। और प्रोग्नोसिस हर हाल में फॉर्मुलेशन में आखिर में मेंशन करना है। आउटकम इज डिटरमिन्ड बाय यूजुअली ग्लोबल असेसमेंट स्केल स्कोर दैट सीक्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन लव, वर्क एंड प्ले. Factors complicating this goal involves adherence, motivation, support, pre-morbid level of functioning, etc. All factors allow for prognostic prediction. आम तौर पे किताबों में prognostic factors मेंशन होते हैं हर बीमारी के साथ, और उन prognostic factors को अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे मेंशन करने में, एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उन फैक्टर्स को नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप मेंशन नहीं कर पाएंगे। स्किज़ोफ्रेनिया में व्हाट आर द गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, व्हाट आर द बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स, डिप्रेशन में, बाइपोलर में, ओसीडी में प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स इन्हीं चीज़ों से जो पीछे मैंने पढ़ाई, इन्हीं चीज़ों से आपको असेसमेंट में हेल्प करेंगे और यही चीज़ें आपको वर्बलाइज करनी है। Overview, formulation and treatment plan. So gather data, presenting issues, clinical issues, define problems, outcome goals, apply hypothesis, biological or crisis, biopsychosocial models, CBT, treatment plans में priorities, पहले सबसे पहले क्या है, suicide को address करना सबसे पहली priority है। So ये भी एक formulation का हिस्सा है। रिसोर्सेज, रिलेशनशिप्स एंड रेफरल। अगर आपको लगता है जनरल मेडिकल कंडीशन है तो आपको उसके बारे में भी मेंशन करना है। अब तक ये फॉर्मुलेशन की आउटलाइन मैंने आपको दे दी। फॉर्मुलेशन कैसे बोलनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, कैसे उसको आगे लेके चलना है, ऑब्वियसली ये भी एक टास्क है जो मेरा ख्याल है कि हम इंटरव्यूइंग स्किल्स के दौरान होपफुली कवर कर लेंगे। अभी तक की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई सवाल तो बताएं। ये स्क्रीन नजर आ रही थी आप लोगों को? शेयर किया था मैंने? नहीं किया था? एनीबॉडी? स्क्रीन तो नजर नहीं आ रही। सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की और मैंने ये कर दिया। एनीवेज, मैं स्क्रीन शेयरिंग दोबारा से लगाता हूं और हम थोड़ा सा कोशिश करके अब इनसाइट भी कर लें तो होपफुली हमारा ये एरिया कवर हो जाएगा, होपफुली। सो लेट मी ब्रिंग आउट द इनसाइट and then I will share the screen. Okay. Okay, can you see this now? Are you able to see this slide on the screen? Yes, sir. नजर नहीं। Insight लिखा हुआ नजर आ रहा है? स्लाइड नजर आ रही है? Okay. So we'll नहीं move. आ रही। आ रही है, नहीं आ रही? सर नहीं आ रही। Okay. ओके ओके, कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही। जो मोबाइल पे बैठे हुए शायद उनको नहीं आ रही, जो कंप्यूटर पे बैठे हुए उनको शायद आ रही है। ओके, हम इनसाइट करते हैं। अब इनसाइट के बारे में थोड़ा सा ये कि ये एक लंबी प्रेजेंटेशन और एक लंबी डिस्कशन है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि जो आपके लिए ज़रूरी स्लाइड्स हैं मैं सिर्फ उन पे बात करूँ। It is the understanding of a specific cause and effect in a specific context. ये insight क्यों पूछते हैं आप लोगों से? इसके लिए ये this is what it is. It is the understanding of a specific cause and effect in a specific context. It's a piece of information, the act or result of understanding the inner nature of things
or of seeing intuitively, called gnosis in Greek, and introspection, the power of acute observation and deduction, discernment, perception, called as intellection. अब ये थोड़े से अंग्रेज़ी के मुख्तलिफ मुश्किल अल्फाज जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है. ये जो टर्म इंसाइट है, it was coined by German psychologist and theoretical linguist Karl Buller. ठीक है? Insight that manifests itself suddenly, such as understanding how to solve a difficult problem, is sometimes called by the German word Erlebnis. This is unfortunately, again, I cannot pronounce German so well, so but still. Insight का लफ्जी मतलब ये है कि मुझे ये फहम हो कि मुझे ज़हनी बीमारी है और उस बीमारी से रिलेटेड एसोसिएटेड चीज़ों के बारे में मुझे पता हो. ओके. सॉरी, स्क्रीन ब्रॉडकास्ट. ओके, फिर शेयरिंग ख़त्म हो गई. आई एम सॉरी, आई हैव टू शेयर अगेन. Something happened to it. Oh, someone else has started sharing. So, यहाँ पे किसी ने कंट्रोल ले लिया. ओके. थोड़ा सा अपने सेटअप्स को चेक कर लें. आई थिंक somebody else is controlling the screen now. So अपनी स्क्रीन शेयरिंग आप लोग बंद कर दें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. मुझे वरना इसको देखने में बड़ा टाइम लग जाएगा. अगर आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे चेक करें और स्क्रीन शेयरिंग ऑन है तो उसको ऑफ कर दें, अदरवाइज ये फिर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा. ओके, सो दिस स्क्रीन शेयरिंग वाज डन बाय somebody. ओके, एनीवेज, मैं अब इसको फिर मिनिमाइज कर रहा हूँ बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग अगर ऑन किसी और ने कर दिया तो वो हम नहीं रोक पाएंगे. यू पीपल हैव टू बी. आप बता रहे. अच्छा, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको देखने के लिए भी बड़ा टाइम लग जाएगा कि इंडिविजुअली मैं सबको देखूंगा कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है. सो इसमें टाइम लगेगा. अपनी स्क्रीन शेयरिंग आप लोग कोशिश करके बंद कर दें, ठीक है? सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ओपन रिसेंट, कम ऑन. ओके, मैं दोबारा से इनसाइट वाली प्रेजेंटेशन ऑन कर लूँ ताकि मैं उसको आगे लेके चलूँ. ओके. पाकिस्तान में बहुत सारी आसानियाँ अभी मुझे मेरी जो ट्रेनी थी वो उनसे बात हो रही थी तो वो मुझे कह रही थी कि जी आप ये कर लें, आप वो कर लें. सो देयर वर मल्टीपल सजेशन हाउ टू डू इट, बट अनफॉर्चुनेटली सारा कुछ हम नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज खुद करनी है. पाकिस्तान में हमें हेल्प ये मिलती है कि बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज सपोर्ट कर देती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर देती हैं. यहाँ पे एवरीथिंग हैज़ टू बी डन बाय योर ओन सेल्फ. सो ये टीम के ग्रुप बनाना, उसको टेलीकास्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको अपलोड करना, आई हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ, सो विच इज़ समटाइम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. एनीवेज, फ्रॉइड ने इंसाइट के बारे में कहा, while not employing the term specifically, realized that what present-day analysts would call insight was not merely rational self-evaluation, otherwise simply reading text on psychoanalysis would cure neurosis. ये फ्रॉइड का इंसाइट के बारे में स्टेटमेंट थी. ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट किस्म की बातें की हैं. इसमें एमरडॉट, डेविड और फिर उसकी बात है. इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ग्रेड्स ऑफ इंसाइट, ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकाइट्री में पहली दफ़ा इंसाइट के ग्रेड्स बयान किए गए. उसमें मेंशन किया गया कि स्लाइट अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक एंड नीडिंग हेल्प बट डिनाइंग इट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड इंसाइट. सेकेंड, complete denial of illness. Third,
Awareness of being sick but blaming it on others, on external events or medical or unknown organic causes. So मरीज कहता है, आप उससे मरीज से पूछते हैं जी क्या आपको कोई बीमारी है, वो कहता है हाँ जी बीमारी है। आपको क्या बीमारी है जी? मुझे शुगर है, शुगर की वजह से सर में दर्द रहता है। Now this is awareness of being sick but blaming it on others. या मेरी भाभी मुझे इतना तंग करती है कि मेरा सर फटने लग जाता है। Now we always try to do things like this, say these things. ऑक्सफोर्ड ने जब पहली दफ़ा इस इंसाइट को, ग्रेड्स ऑफ इंसाइट को, ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया कि एक तो मुझे पता है कि जी मुझे जहनी बीमारी है और इस जहनी बीमारी का इलाज चाहिए और उसका इलाज करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे मैं ठीक नहीं होऊंगा, ये कंप्लीट इंसाइट है। लेकिन एक इंसाइट है कि जी मुझे ये तो पता है कि मुझे बीमारी है, लेकिन मैं बीमारी को दूसरों पे ब्लेम कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि मुझे ये पता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मुझे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तीसरा। और चौथा ये कि कंप्लीट डिनाइल कि ना जी ना मुझे कोई बीमारी है और ना मुझे इलाज की ज़रूरत है। सो यूजुअली ये 4 पैरामीटर्स डिफाइन किए जाते हैं, जो ऑक्सफोर्ड ने डिफाइन किए हैं इंसाइट के बेसिस पे। 4 पैरामीटर्स, मुझे जहनी बीमारी है, जहनी बीमारी को इलाज की ज़रूरत है और इलाज से मैं बेहतर हो जाऊंगा। मुझे जहनी बीमारी है लेकिन मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है और मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे जहनी बीमारी कोई नहीं है, ना मुझे इलाज की ज़रूरत है। सो इस ग्रेड में आप 4 सवाल जो आप इंसाइट के लिए पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि जी आपके ख्याल में आपको कोई बीमारी है? वो कहेगा हाँ जी मुझे बीमारी है। आपके ख्याल में आपको जहनी बीमारी है कि आपको जिस्मानी बीमारी है? वो कहेगा जी मुझे जहनी बीमारी है। आपके ख्याल में आपको इस बीमारी के इलाज की ज़रूरत है? हाँ जी मुझे इस बीमारी के इलाज की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि आप इस बीमारी के इलाज से मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाएंगे? हाँ जी मैं इस बीमारी के इलाज से उम्मीद है कि सेहतयाब हो जाऊंगा। नाउ दीज आर 4 पैरामीटर्स दैट यू हैव टू नो एंड दिस इज द इनसाइट। अगर इनमें से 3 में से किसी 4 में से किसी एक को भी वो निगेट कर देता है तो फिर वो या पार्शियल इंसाइट है या एब्सेंट इंसाइट है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। ये इंसाइट के 4 सवाल इंपॉर्टेंट है। बाकी इंसाइट में इंटेलेक्चुअल इंसाइट है, एडमिशन ऑफ इलनेस एंड रिकग्निशन दैट सिम्टम्स और failures in social judgment are due to irrational feelings or disturbances without applying that knowledge to future experiences. ये intellectual insight है। एक emotional insight भी होती है जिसको कहते हैं emotional awareness of the motives and the feelings within of the underlying meaning of the symptoms and whether this awareness leads to the changes in personality and future behavior, openness to new ideas and sorry somebody wants to be in so I have to allow them before they come. Okay, so sorry again. So the true emotional insight, emotional awareness of the motives and the feelings within of the underlying meaning of the symptoms and whether this awareness leads to changes in personality and future behaviors, openness to new ideas and concept about the self. So एक वो इंसाइट है जो ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन है जिसके 4 सवाल है। एक इंटेलेक्चुअल इंसाइट है, एक इमोशनल इंसाइट है। So ये 3 किस्म की इंसाइट यूजुअली लिटरेचर में डिफाइन की जाती हैं। आपसे इम्तिहान में जो ऑक्सफोर्ड की इंसाइट है which is considered to be enough. Impaired insight, diminished ability to understand the objective reality of a situation. A person with a poor recognition or acknowledgement is referred to as having poor insight or lack of insight. The most extreme form is anosognosia, difficult tongue twister. That is the total absence of insight into one's mental illness. The term was coined by Babinski's 1914 में, usually confined to a syndrome following lesions in the right hemisphere, mainly the parietal lobe. So, organicity में
impaired insight is unfortunately a complication और साइकोसिस में जो एब्सेंट इनसाइट है उसको रूल आउट करना कि ये स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से है या ऑर्गेनिसिटी की वजह से, ये समटाइम्स कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसीलिए जब मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जनरल मेडिकल कंडीशन, second substance abuse, then psychiatric morbidity, and only then you'll be able to treat, otherwise you won't be able to. Factors influencing insight, cultural models of insight, illness. जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी एक एग्जांपल दी थी कि हमारे कुछ सहराई इलाकों में लोग गर्मियों में भी पगड़ी पहनते हैं। सो वो ये कहते हैं कि वो मोटी पगड़ी आपको गर्मी से बचाती है, लेकिन जनरली ये फैन कहता है कि जब इतनी मोटी चादर सर पे लपेटी होगी, आगे गर्मी बढ़ी है और इतनी मोटी चादर लपेटेगा वो तो और गिर जाएगा। सो वो कल्चरल बिलीफ सिस्टम, हेल्थ मॉडल जो कल्चर के हिसाब से रिलेटेड है, वो इनसाइट की इस्टेब्लिशमेंट में ज़रूरी है। फिर इंटेलिजेंस, 80% ऑफ द पॉपुलेशन जनरली कमिंग टू अस, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो एक लेवल का होता है। लाइक पाकिस्तान में वो कहते हैं जी कि शरअ एजुकेशन इज 52%। आई डोंट नो वेदर इट इज रियली 52% और नॉट, बट देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू द डिटेल्स। तो जो शख्स अपने दस्तखत भी कर सकता है उसको भी पढ़े लिखे में शुमार कर लिया जाता है, विच अनफॉर्चुनेटली नेवर गिव्स एन आइडिया कि उसका इंटेलेक्ट कितना है। मैट्रिक पास पढ़ा लिखा कंसिडर किया जाता है, सो उसका इंटेलेक्ट कितना है वी डोंट नो। सो अगर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को असेस करें, उसके बेसिस पे अगर हम इंसाइट को बयान करें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। फिर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में, जैसे मैंने पहले बात की ट्रांसफरेंस की, काउंटर ट्रांसफरेंस की, उस चीज़ में भी ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जब आप इंसाइट पूछ रहे हैं मरीज से, ऑक्सफोर्ड वाली इंसाइट पूछ रहे हैं 4 सवालों की, और मरीज के साथ आपका लिंक स्टैब्लिश ही नहीं हुआ, मरीज के साथ आपकी रैपो बनी ही नहीं, तो फिर आप जब इंसाइट पूछेंगे तो मरीज आपको जवाब सही नहीं देगा और आप उसको लेबल कर देंगे ही लैक्स इंसाइट, सो ही इज आइदर साइकोटिक और ही इज हैविंग parietal lobe dysfunctioning, which unfortunately creates the problem. So communication with the patient, interacting with the patient, this is important that we should know how much we are having a connection with the client, how much empathetic we are, what are the cultural backgrounds, what is the educational status of the patient. Only then we are sure that yes, the insight is present or absent. Symptomatology, usually delusional states में insight absent होती है. Denial, motivation, perseveration of self-esteem, avoidance of stigma, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अक्सर मरीज आके अस्पताल में तो नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम पेशेंट्स आते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्लिनिक पे ये मरीज ज़रूर सवाल पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं सही जगह पे आ गया हूँ, आपके ख्याल में मुझे जहनी बीमारी है, क्या मैं पागल हूँ, राइट। सो वो स्टिग्मा अवॉइड करने के लिए साइकियाट्रिस्ट को ना दिखाने के चक्कर में भी इनसाइट लैक हो सकती है। एंड पर्सनैलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर इवन पेशेंट साइकोटिक भी है, इवन पेशेंट डिप्रेस्ड है या पेशेंट को एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी की फॉर्म इस किस्म की है जो कि अगेन हम आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, तब भी इनसाइट एब्सेंट लेबल हो सकती है। सो यू हैव टू बी very much clear about all of these issues. Now, insight unfortunately has a major role to play in, again, multiple areas like management plans, like outcome strategies, like treatment strategies. आप मरीज को कहते हैं जी कि ये दवाई इतने अरसे खा के मुझे आके मिले। 90% ऑफ द पेशेंट्स में ये होता है कि पेशेंट 2 हफ्ते 3 हफ्ते दवाई खाई, बेहतर महसूस किया, छोड़ दी, नहीं फर्क पड़ा, किसी और के पास चले गए। नाउ दिस इज अ कॉमन अनफॉर्चुनेटली फिनोमेना विद साइकियाट्रिक पेशेंट। ऐसी सिचुएशन में जब पेशेंट दोबारा वापस आपके पास आता है, कंप्लायंस की प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी इनसाइट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एग्जाम में आप लोगों से एक्सपेक्टेड ये है कि ऑक्सफोर्ड की इनसाइट के वो 4 सवाल जिनका मैंने आपको बयान किया वो आप पूछें, लेकिन
एक्सपेक्टेड ये होता है कि आप इन सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रखते हुए बात करें. सो एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या कन्वर्जन डिसऑर्डर का पेशेंट है, उसके बारे में अगर आप ये बात करें कि जी इसकी इनसाइट एब्सेंट है, तो थोड़ा सा सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है. 90% डिसोसिएटिव पेशेंट्स एडमिट नहीं करेंगे कि उनको कोई बीमारी है या उनको इलाज की ज़रूरत. वो कहेगी वो तो साया हो गया, जिन चिमड़ गया, भूत आ गया. अब उस सिचुएशन में अगर इनसाइट एब्सेंट है तो क्या पेशेंट साइकोसिस लेबल हो रहा है या पेशेंट ऑर्गेनिक लेबल हो रहा है? दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. सो ये आप लोगों के लिए असेस करना ज़रूरी है कि वो ऑक्सफोर्ड की इनसाइट के 4 सवाल पूछ के काफ़ी होगा या उसमें मज़ीद चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है. इनसाइट और जजमेंट में सेल्फ अप्रेजल एंड सेल्फ एस्टीम, मेजर सोशल रिलेशनशिप्स, understanding the current circumstances, understanding of personal roles and responsibilities, and ability to describe personal, psychological, and physical status are important components. इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं मज़ीद इसमें देख लूँ. इसमें बहुत सारी चीज़ें और हैं, बट इट्स अ लॉन्ग प्रेजेंटेशन. मैं प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा जिसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट मॉडल, एटियोलॉजी ऑफ इनसाइट, वो सारी चीज़ें शामिल हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल एंड कंफ्यूज यू बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिलेटेड टू योर मोर क्लिनिकल नॉलेज. इट्स मोस्टली थ्योरेटिकल, सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल. बट इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं तो पूछ लें. एनीबडी? नहीं? सो या तो सब कुछ समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया. क्या अज्यूम करूं? इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंसाइट में थोड़ा सा डिफरेंस, वो थोड़ा समझा दें. इमोशनल और इंटेलिजेंट, मैंने बात की, जब भी आप एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट में होंगे, लाइक आजकल कोरोना है, पेंडेमिक है, कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इनसाइट है कि जी कोरोना इज अ वायरल इन्फेक्शन? कितने लोगों को है इनसाइट आपके ख्याल में? आप रोज सर मुझे वो तुम्हें तो लाजमी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि तुम्हारे अनफॉर्चुनेटली उस सिस्टम में चल रहा है, वो आई एग्री. लेकिन आपके ख्याल में जनरली पाकिस्तान में कितने लोगों को इनसाइट है कि जी कोरोना है? व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो मैसेजेस मैं देखता हूँ उससे तो मुझे नहीं लगता कि 60-70% लोगों को ये अंदाज़ा है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है. इतनी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन है. People don't want to agree with it कि it's a viral infection, it is contagious, it can be treated, medical people can help, उस पर काम हो रहा है. क्वारंटीन ज़रूरी है, आइसोलेशन ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, बाकी चीज़ें कौन कर रहा है? अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर्स इतने सफ़र कर रहे हैं, उनकी डेथ्स हो रही है. नाउ दिस इज इंटेलेक्चुअल इंसाइट. इमोशनल इंसाइट का कंपोनेंट भी इसमें है और इंटेलेक्चुअल का भी है. फहम, उसको समझने का जो हमारी आईक्यू से एसोसिएटेड है, फहम उसको समझने का जो हमारे जज्बात और एहसासात से रिलेटेड है, फहम किसी चीज़ को समझने का जो हमारे कल्चर से रिलेटेड है, दैट इज इंसाइट. एक साइकियाट्रिस्ट से, अगेन एक फिजिशियन से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका इंटेलेक्चुअल भी बेस्ट है, 100 से ऊपर है आईक्यू, उसकी इमोशनल स्टेटस भी ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस या घर में मार धाड़ या लड़ाई झगड़ा या खुदा न खास्ता सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज़ नहीं हो रहा, उसको चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी है. फिर भी वो अगर ये कहे कि जी, मतलब दिस इज अ ट्रू फैक्ट, जो मेरे एक साथी फिजिशियन है, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हो रही और मैं उनको कह रहा, मैंने कहा जी बहुत बुरे हालात हैं. उन्होंने कहा नहीं कोई बुरे हालात नहीं है डॉक्टर नासिर, बस हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा. नाउ टू डेवलप अ हर्ड इम्यूनिटी इन अ कोविड सिचुएशन, अनफॉर्चुनेटली 1% मॉर्टेलिटी भी मैं अगर लूँ तो 22 करोड़ की आबादी में से 22 लाख लोग मर जाएंगे.
और अगर 22 लाख लोग मर जाएंगे तो सिर्फ 22 लाख लोग नहीं हैं, 22 लाख घर हैं जो उजड़ जाएंगे। क्या हम इतनी बड़ी कॉस्ट देने को तैयार हैं? नाउ दिस इज व्हाट इज इनसाइट, दिस इज व्हाट आई बिलीव इज इनसाइट। अगर हमारी इनसाइट है तो हम उसको फॉलो करेंगे, कंप्लाइंट होंगे, इलाज करवाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे। अगर हमारी इंसाइट नहीं है तो ना हम उसको बीमारी समझेंगे, ना हम उसका इलाज कराएंगे, ना हमारा फॉलो अप होगा। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पीपल, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इनसाइट के वो 4 सवाल ऑक्सफोर्ड वाले, क्या आपको कोई बीमारी है, क्या आपको इलाज की ज़रूरत है, आपको जहनी बीमारी है कि जिस्मानी बीमारी है, और क्या आप समझते हैं कि इलाज से आप बेहतर हो जाएंगे, इज नॉट इनफ, is not enough. You have to consider the cultural factors, the social factors, the emotional factors and intellectual factors. Sorry, मैंने जवाब थोड़ा लंबा कर दिया, वो सवाल जो पूछा था वो दूर निकल गया, मेरी अपनी इमोशनैलिटी बीच में शामिल हो गई, सो लैक ऑफ इंसाइट। हाँ, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू इट? सर हमारे पास यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं कि जी साइकोसिस नहीं है, आप उनसे पूछें कि कोई जहनी बीमारी है तो वो ये कहते हैं कि नहीं जी मेरे ऊपर तो जादू हो गया है या जिन का साया हो गया या कुछ इस तरह की चीज़। हम कल्चरल बैकग्राउंड देख लेते हैं, हमें अंदाजा हो जाता है कि जी पीछे से ऐसी है। तो हाउ वुड बी एक्सप्लेन इट टू द एग्जामिनर कि जी में इनसाइट का क्या लेवल? सिंपल अल्फाज में, यही अल्फाज में बयान करना है कि what I perceive is that she lacks insight to her illness because of the modifying factors related to culture and intelligence. Full stop. आपने उसको ये एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि मैंने उससे 4 सवाल पूछे थे कि 6 सवाल पूछे थे। एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उससे वो 4 सवाल पूछ के इनसाइट की डेफिनेशन देंगे। एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप बयान करेंगे कि जी शी लैक्स इनसाइट और शी हैज इनसाइट। इफ शी हैज इनसाइट और ही हैज इनसाइट टू हिज इलनेस, फाइन, राइट? इफ लैक्स इनसाइट, देन व्हाई? मेंशन अबाउट two factors. Because of the cultural background and intellectual capability of an individual, I perceive he lacks insight to his illness. Full stop. हाँ, इस पे मजीद डिबेट हो, क्वेश्चनिंग हो तो ज़रूर बात करो आगे, जो मैं बात कर रहा हूँ वही बात आगे करो, लेकिन यूजुअली नहीं होगा। एग्जामिनर वहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि जब एग्जामिनर देखता है ना कि किसी चीज़ के बारे में आपको पता है तो एग्जामिनर आगे सवाल नहीं पूछता। एग्जामिनर सवाल उस वक्त पूछता है जब उसको ये पता हो कि लो जी फंस गया। Then they ask the questions and they try to judge your knowledge. And if you stream through it, you are successful. If you won't be able to stream through it, you fail. ठीक है? Any other question? That's it? Okay? So, formulation and insight we have covered. Next, what I intend to do is to talk about interviewing skills, how we have to interact with the patient, what should be the language, what should be our gestures, physical positioning, setting, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, मरीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, that is an important component. So इसी से related, इसी को extend करके हम उस पे जाएंगे। जी सर, एक चीज पूछनी थी ये कि जिस तरह मैंने आपको ज्यादातर नहीं पेशेंट देखा, लेकिन जो भी आपको देखा पेशेंट, आप कभी भी डायरेक्ट नहीं पूछते हैं इसकी क्या मसला है। आप मैंने देखा कि जनरल बातचीत करते हैं और उसी में से रह सकते हैं। अब हम ये वाली चीज हम बहुत लाइक करते हैं, कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, पेशेंट अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन आपको मैंने कभी नहीं देखा कि आपने कभी किसी से डायरेक्ट पूछा। आपको याद है कि जब आप कैरी करवा रहे थे, वो पेशेंट एक बाहर से आया था, वो काफी ऑफेंड हो गया था, डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा था सवाल। तो ये वाली चीज जो है कि किस तरह से इनडायरेक्टली वो आप आपके स्किल्स हैं, बेनजीर, यही स्किल्स
एज अ साइकियाट्रिस्ट आपको डेवलप करनी है। और बच्चे ये याद रखना कि ये जो 4 साल आपकी ट्रेनिंग की है ना, जब कैंडिडेट्स एंटर होते हैं तो मैं उस वक्त उनको कहता हूँ कि जी ऑक्सफोर्ड पढ़ लो। सो पहले साल में ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकियाट्री 0 से आखिरी सफ़े तक सारी पढ़ी जाए, ताकि एक बेसिक नॉलेज आपके पास आ जाए। दूसरे साल में जब आपने IIM की तैयारी करनी है तो फिर ये स्किल्स, जिसमें बिहेवियरल साइंसेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ है, ये चीज़ें आप कवर करते हैं और फिर आप IIM के इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। मसला ये होता है कि पहले साल तो हमें होश नहीं आती ट्रेनिंग के दौरान, और टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग। अगर उस स्ट्रक्चर में रह के चलोगे तो कोई मसला नहीं होगा। मरीज से अभी उस दिन वही बात कि मोहम्मद राना साहब भी बार बार ये कहते हैं, ये डायरेक्ट सवाल नहीं पूछना कि हाँ जी कैसे आए, हाँ जी क्या बीमारी है, आपको डिप्रेशन होता है। यहाँ पे भी ये मसला है। पेशेंट आगे कहता है मुझे कि जी आई एम हैविंग अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, सो आई नीड ट्रीटमेंट फॉर दैट। I said, don't give me the diagnosis. Don't give me what you think about it. Let me know actually what actually you are experiencing. And then we'll see what we can do about it. So मेरे पास जो पेशेंट आता है तो मैं उससे सवाल जवाब शुरू करता हूँ, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है प्राइवेट प्रैक्टिस में ख़ास तौर पे। तो बात शुरू जनरल से होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन से होती है। हाँ, एंड ऑफ द डे जब आपने मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करना है फिर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बेशक कर लें। सो आप पूछते हैं जी आप मेरे पास आए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, शादी को कितना अरसा हो गया, खावन के साथ या बीवी के साथ रिलेशनशिप कैसा है, काम क्या करते हैं, तनख्वाह कितनी है। नाउ these are not the questions which can actually constrict the time, or maybe they won't lead you anywhere. These are the questions which leads to so many things. आप cognitive assessment उसकी indirectly कर रहे हैं, आप उससे communication enhance कर रहे हैं, आप empathy develop कर रहे हैं। यही चीज़ें मैं कवर करना चाहता हूँ अगले उसमें interviewing skills में, कि जब हम मरीज से गुफ्तगू कर रहे हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन का फर्क क्या है। मैं कहता जी ज़रा आपने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी? आप कहेंगे हाँ जी देखी। कैसी लगी? ठीक है, ज़रा बताएंगे जी हाँ जी फिल्म जो है बड़ी अच्छी थी, उसमें एक्शन हुआ, मार धाड़ हुई, ये हुआ वो हुआ, इतना पसंद आया। ना दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन ये कि ज़रा फास्ट एंड फ्यूरियस देखी थी, अच्छी थी ना। नाउ दिस इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। या वो कहेगी हाँ या वो कहेगी ना, कहानी खत्म, बात आगे बढ़ेगी नहीं। सो हर सवाल को आप ओपन एंडेड में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर सवाल को आप क्लोज एंडेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी थीम ये होती है कि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस उस वक्त के लिए रखें जब आपको लगे कि हाँ 15 मिनट गुजर गए। जैसे मैंने भी पहले भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग केस की आप लोगों को बताई थी अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में, अभी भी दोबारा से बात करूँ। जब आपको लगे कि जी हाँ 15 मिनट गुजर गए और अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं किसी नतीजे पे लेकर नहीं जा रहे, तो आप मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करना शुरू करते हैं पेशेंट का, या जनरल बाकी क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, ताकि आप टोन डाउन करें अपने डायग्नोसिस को। And this is an art that you have to learn as a psychiatric resident or the postgraduate trainee. अगर ये आर्ट आ जाएगा तो आप अच्छे psychiatrist हैं, अगर ये आर्ट नहीं आएगा तो आप अच्छे psychiatrist नहीं हैं। I can see in the participants Ali Burhan Mustafa. Thank you very much for joining me, and Rooj is there as well, which is an honor for me कि आप दोनों भी participate कर रहे हैं। So I hope I am making sense out of it. बुरहान अगर कोई गलती करूँ तो टोक देना और मना कर देना। Dr. Ali Burhan Mustafa is a good name in psychiatry. MashaAllah, he is flourishing so well, and his so many trainees and all those people. So very proud of you, Burhan. Thank you. Any other question or any other comment? Anybody? That's it? Okay. Thank you very much.
सो होपफुली हम नेक्स्ट फ्राइडे को 8 बजे फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, और हम इंटरव्यूइंग स्किल्स करेंगे। उसके बाद एक दो लोगों ने कहा कि जी पर्सनालिटी, साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी कवर करवा दें, सो वी विल ट्राई टू कवर दैट। इसके अलावा भी जो टॉपिक्स जनरली कवर नहीं होते बाकी जगहों पे, मैं वो कवर कराने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने पहले कहा, सब्सटेंस अब्यूज़, जनरल मेडिकल कंडीशन रिलेटेड टू साइकाइट्री, उन पे हम पहले जोर देंगे ताकि हम DSM के क्राइटेरिया के हिसाब से चलें और उसी को लेके आगे फॉलो करते जाएंगे जितने एरियाज कवर हो गए। राइट, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और कोरोना से बचें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।